مسجد نبوی میں اندر انٹر ہوئی کہ ٹھیک ہے جگہ لوٹنا ٹھیک ہے پھر اور نماز پڑھنا انشاءاللہ لاک ہوا ساری چچنی پی ہے اور جڑے وہ کھجوراں جتھے لگے نا ہیمے اتھے جڑا نا مشرقین جڑا نا لائے سن ہیمے یہ ساری ریت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی میری فرینڈ تمہارے پاؤ السلام علیکم. میں ہاں سارا امید کرنے کہ سارے بہن بھرا ٹھیک ٹھاک ہو سو. اج ایک نیا ولاگ کے لیے ایک نئی صبح نال حاضر ہوئے ہیں. امید کرنے کہ اج میں سارا ولاگ پسند ہے سی انشاءاللہ. باقی اساں جانے پہ جائے اذان نہیں ہوئی نماز فجر نہ ٹائم ہونے نہ ٹھیک ہے اور اساں نماز مدینہ وچ پڑھساں انشاءاللہ اساں کی اذان سناساں. بالکل کول آئی ہے جی مسجد ابو بکر نے ٹھیک ہے اور اتھوں اساں نکلی تو جاساں مسجد نبی اور اتھے اساں نماز پڑھساں. مسجد ہی موہاں کو گزری دیں ٹھیک ہے دو مسجد سب تو پہلے اس گلی کو سامنے جو گزری مسجد نبوی میں اندر انٹر ہوئی کہ ٹھیک ہے جگہ لوٹنا ٹھیک ہے پھر اور نماز پڑھنا انشاءاللہ. الحمدللہ نماز ادا کری ہوں اور واپس ہوٹل کی طرف سارے بندے نماز پڑھی واپس اپنے ہوٹل کی طرف جائے رہنا تھا. کافی زیادہ ہی سیم کی طرح بچے جانا جو نماز پڑھی رہا. باقی ویسے الحمدللہ مدینہ اتنا رش کو نہیں ہوا. الرحمن الرحیم. اور ان اساں چلے ہیں جی زیارتاں پر اور فیضر اساں کی بسائے بازی میں کم دوئے جاساں لگے والا چیزاں وغیرہ دے دیں ٹھیک ہے اور اساں ہوں جانا بس ہے پر جائی اس تو بعد انشاءاللہ جنہیں زیارتاں کرساں اور اپنے پرانا بھی دسا اساں جانے نہیں کدرے تو جڑے سارے چینل پر نویں سارے چینل کی سبسکرائب کر کنو اساں جائی رہے ہیں تو جو سبسکرائب کرسو تو انشاءاللہ اساں کی جڑی اساں ویڈیو لاساں اس کی آسانی نہ لگی جائے کرسی تو جلدی جلدی اساں ہوں پہلو بس وچ بہی کنا ٹھیک ہے اس تو بعد انشاءاللہ اپنے بھرا پرانی اپڈیٹ دساں. کھانے بنیا پائے اور کھانے پہ اور اساں کھلتے ہیں روڈ پر بس کا انتظار کر رہے ہیں. ذرا جاگ جائیں جب جاگ جائیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیجیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی جاگ چکے ہیں. اب میرے ساتھ ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیجیے. میری طرف سے بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرے ساتھ ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ الا باللہ العلی العظیم. عظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا
मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए, अल्लाह ताला आज का हमारा सफर बाइस रहमत, बाइस निजात और बाइस बख्शिश का जरिया बना दे। अगर ये हमारा आखिरी सफर है, अल्लाह ताला इस सफर में हमारे लिए सानिये सानिये बरकते बरकते रहमते रहमते अता फरमाए। अगर अल्लाह ताला ने हमें हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करवानी है, अपने महबूब की रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की ज़ियारत करवानी है, अल्लाह ताला हमें बार 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 आने की तौफीक अता फरमाए और उस आदमी के 10 गुनाह माफ कर देगा, 10 नेकियों में इजाफा फरमा देगा, उस आदमी के दर्जे बुलंद फरमा देगा और उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल कर देगा। अब एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए जनाब आले। ये कपड़े की चार दीवारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सहाबा के घर थे। ये आप लोगों के सीधे हाथ पर तवज्जो फरमाएं, ये जो आप लोगों के सीधे हाथ पर ये नजर आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सहाबा की इस जगह पर घर थे। ये जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, ये आप लोगों के उल्टे हाथ पर सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी से और काले पत्थरों से बनी हुई एक मस्जिद नजर आएगी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद तुर्की। 2 मीनारों वाली 7 गुंबद वाली, ये आप लोगों के उल्टे हाथ पर सड़क के दरमियान में एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद तुर्की। इस मस्जिद के सामने ही सीधे हाथ पर तुर्की म्यूजियम है, तुर्की स्टेशन है। ये काले पत्थरों वाली, पीले रंग वाली, पीले पत्थरों वाली ये आपको बिल्डिंग नजर आएगी, जिसका नाम है तुर्की म्यूजियम, जिसे तुर्की स्टेशन भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की कुछ चीजें पहले इस जगह पर पड़ी हुई थी, अब इधर से उठा के हरम के 304 नंबर 305 नंबर गेट के करीब लगे हैं। 304 नंबर 305 नंबर गेट के करीब लगे हैं। ये जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, ये आप लोगों के सीधे हाथ पर सड़क के किनारे छोटी सी एक मस्जिद नजर आएगी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद सुकिया। काले पत्थरों वाली 3 सफेद कलर के गुंबद वाली। इस जगह पर एक कुआं था, जिस कुएं का नाम था पीरे सुकिया। इस कुएं हजरत फातिमा ज़हरा का घर और हजरत ज़ैनुल आबिदीन का घर, जिन्हें अहले बैत के घर भी कहा जाता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी की तबीयत खराब थी। जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तुम रुक जाओ, घर में अपनी बीवी की तीमारदारी करो, उसकी सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी का ख्याल रखना। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी रुक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 का लश्कर तैयार हो गया। 313 के लश्कर में 70 ऊंट, 2 घोड़े, 8 तलवारें और 6 ज़िला थे। जून जुलाई का महीना, सख्त गर्मी का महीना, रमजान का महीना। किसी ने पाँव में चप्पल जूता पहने, किसी ने नहीं पहना। हर सवारी पर 3-3 लोग सवार थे। एक के बाद एक की बारी आती ऊंट की रस्सी, ऊंट की महार पकड़कर आगे आगे चलने की। जब 2 जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारी पर नीचे उतरे, ऊंट की रस्सी, ऊंट की महार पकड़कर आगे आगे चलना शुरू कर दिया। जब आगे आगे चलना शुरू कर दिया, रास्ते में वादी रोहा, बीरे रोहा का कुआं आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ रखी, पड़ाव डाला। सहाबा आगे आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी वादी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे बहुत प्यारी वादी है, मदीना मुनव्वरा की वादियों से भी ज्यादा प्यारी वादी है, जिधर से 70 अंबिया का गुजर हुआ है, जिधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम भी इधर से गुजर कर गए हैं। जब तक वो दोबारा इस जगह
से गुजर कर नहीं जाएंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कहते जमीन का निजाम तरम बरम हो सकता है, मेरी और आप लोगों की कही बातें झूठी हो सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। नबी करीम बहुत ज्यादा कड़वा था, बहुत ज्यादा खारा था, पीने के काबिल नहीं था। सहाबा आगे आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कुएं का पानी बहुत ज्यादा नमकीन है, बहुत ज्यादा कड़वा है, बहुत ज्यादा खारा है, ये तो हलक से नीचे नहीं गुजर रहा, कुछ कीजिए। दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कुएं से पानी निकालो, पानी बर्तन में डालो और मेरे पास लेकर आ जाओ। सहाबा गए, जाके कुएं से पानी निकाला, पानी बर्तन में डाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में पानी लिया, कुरली की, अपना कुरली वाला पानी उस बर्तन में शामिल कर दिया, अपना लुबाबे दहन उस बर्तन में शामिल कर दिया और फरमाया जब कुएं में पानी वापस डाल दो। सहाबा गए, जाके कुएं में पानी वापस डाल दिया। जब कुएं में पानी वापस डाल दिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस कुएं का पानी मीठा हो गया। सुभान अल्लाह। वो खजूरों की टहनी के साथ, खजूरों की छड़ी के साथ जगह जगह पर निशानदेही कर दी। फला मुशरिक इस जगह पर कत्ल होगा, फला काफिर इस जगह पर कत्ल होगा, फला काफिर इस जगह पर कत्ल होगा और फला काफिर इस जगह पर कत्ल होगा। बाद में मुशरिकीन मक्का काफिर मक्का उस जगह पर आकर कत्ल होते गए। ना इधर हुए, ना इधर हुए, ना आगे हुए, ना पीछे हुए। खैमे लगने शुरू हो गए। खैमे लगते लगते रात का वक्त हो गया। जब रात का वक्त हो गया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद अरीश वाली जगह पर खैमा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अली रज़ियल्लाहु ने रात के अंधेरे में पहरा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के अंधेरे में सजदे में जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में मदद की दुआ की, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा। पर पांव जमने शुरू हो गए। मुसलमानों ने रेत को शहरों से इकट्ठा किया, पीने के लिए पानी का बंदोबस्त भी कर लिया। और जिस जगह पर मुशरिकीन मक्का काफिर मक्का जिन्होंने अच्छी अच्छी जगह का इंतखाब कर लिया था, पक्की पक्की जगह का इंतखाब कर लिया था, पक्की पक्की जगह पर अपने खेमे लगा लिए थे, अल्लाह ताला के हुक्म से वो जमीन कच्ची हो गई। उस जगह पर गारा बन गया। आपस में टकरा टकरा कर मरना झगड़ना शुरू हो गए। 70 कुफारों को कत्ल करके जहन्नम वासी किया गया। टांगों से पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर एक गड्ढे में डाल दिया गया। कुछ भाग दौड़े, कुछ पकड़े गए। जो पकड़े गए सहाबा ने उनको बंदी बना लिया, उनके हाथ बांध लिए। हाथ बांधकर सहाबा उनको लेकर जाने लगे। जब लेकर जाने लगे तो मुशरिक कहने लगे हमें पीने के लिए पानी दो। सहाबा ने कहा मुशरिको, तुमने तो पीने वाले पानी के कुएं पर भी कब्जा कर लिया था, तुम लोगों ने तो हमें घूंट एक बूंद भी नहीं दी थी, हम तुमको पीने के लिए पानी नहीं देंगे। फिर चलते चलते थोड़ा सा और आगे गए, फिर मुशरिकों ने पानी मांगा, सहाबा ने फिर मना कर दिया। फिर चलते चलते थोड़ा सा और आगे गए, जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिक पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, इन लोगों ने तो पीने वाले पानी के कुएं पर भी कब्जा कर लिया था, इन लोगों ने तो हमें घूंट एक बूंद भी नहीं दी थी, हम इनको पीने के लिए पानी नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इनका मिजाज था, ये हमारा मिजाज है, इनको पीने के लिए पानी दे दो। इस तरह अल्लाह ताला ने हमें ये जंग फतह अता फरमाई। आज सब ये था हमारा जंग बदर का वाक़या। इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे ज़ियारत आएगी आप लोगों को फिर से ज़ियारत के बारे में थोड़ी सी तफसील बता दी जाएगी। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए जनाब अली। अगली जो हमारी ज़ियारत आ रही है मकबरा शुहदा बदर, जो इस जंग में 14 सहाबा शहीद हुए।
मकबरा शुहदा बदर की पहले दीवारें बिल्कुल छोटी छोटी सी थी। हमारे लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बरतानों से पत्थर ढाक के लेके चले जाया करते थे। हाजी साहब याद रहे, कब्रिस्तानों से मट्टी, कब्रिस्तानों से पत्थर ढाक के नहीं लेके जाने चाहिए। क्यों नहीं लेके जाना चाहिए? क्योंकि कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है, अल्लाह ताला से माफी मांगने की जगह है। अल्लाह ताला हम लोगों को कब्र के हिसाब से बचाए, जन्नतुल फरदौस, जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला में आराम करने की तौफीक अता फरमाए। ये आप लोगों के सीधे हाथ पर ये सीमेंट की और कच्ची मट्टी की दीवारें नजर आ रही हैं। पहले ये छोटी छोटी ये दीवारें थी, अब ये सऊदी गवर्नमेंट ने हमारे लोगों के लिए ये बड़ी बड़ी दीवारें बना दी है, बड़े बड़े जंगले लगा दिए हैं हमारे लोगों की खातिर। ये जो आप लोगों के सीधे हाथ पर ये लोहे के जंगले लगा नजर आ रहे हैं, ये साथ ही ये मकबरा शुहदा बदर है, जो इस जंग में 14 सहाबा शहीद हुए, इस जगह पर आरा फरमा है। नीचे उतरना, शुहदा को सलाम पेश करना, सूरत फातिहा पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह रहमानिर्रहीम। फाइनली असां पहुंची आए हैं जी इत्थे, ठीक है, जंग बदर इत्थे 14 साढ़े साहबा शहीद होए सन, ठीक है, और असां हुण दुआ मंगसां। सारा एरिया जंग बदर में जश्न है। Dieta. Oye, par. नहीं हुआ क्या रहा है? पानी वो मिट्टी वाली रेत वाली है, ठीक है। उजाला लाइट में पाया हुआ कि मिट्टी वगैरह सब कुछ एक है, जिसमें तो बहुत बड़ा उच्चा उजाला लाया हुआ है। ये जी परली साइड पहाड़ियां ये भी सारियां बिच अच्छियां, ये जी पहाड़ियां सारियां अच्छियां, ये भी जाना पूरा हिस्सा जंग बदर विच शामिल हो जाना वै। सब इधर खजूरा ने दरख्त लगे हुए हैं। सारी हिस्ट्री लिखी है। كل من رآه صغيرا أرجع إلا هو أرجع और ये सारिया पहाड़ियां इसने भी अच्छियां जी। और हूँ पता सी कि सऊदीया गौरमेंट जो भी चेंज होना जाना वै सिस्टम, तो नाल बादी भी हुई है। तो जिस वापस ये सारा ये जो जाली लगी है सारा इधर पहाड़ी का हिस्सा अच्छा सी, इतने सारे साहबा शहीद हुए सन। तो वापस हूँ जिस गड्डी पे सा, ठीक है, इधर एरिया सारा चेक किया, जबरदस्त ब्लॉक होया। गड़ा था जिसमें अबू जहल को, उतबा को, शेबा को, रबिया को कत्ल करके जहन्नम वासी इस जगह पर किया गया था। इस जगह पर पहले वाशरूम ही वाशरूम बने हुए थे। जिस तरह मक्का मुकरमा में जिस जगह पर अबू जहल का घर था
उस जगह पर भी सऊदी गवर्नमेंट ने वाशरूम बना दिए। इस जगह पर भी पहले वाशरूम बने हुए थे। ये जो आप लोगों के उल्टे हाथ पर पहाड़ है और ये जो आप लोगों के सीधे हाथ पर पहाड़ है, ये सारा जंगे बदर का मैदान ही मैदान था। आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल, 100 साल, 500, 1000 साल पीछे चले जाए, यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगे बदर का मैदान ही मैदान था। जैसे जैसे सऊदी गवर्नमेंट आ जाती है, अपने लोगों को जगह दे देती है, इससे बात करो, इससे बात करो, इससे बात करो, वैसे वैसे ये बात ही बढ़ती गई है। अब ये शहर बदर बन चुका है। अगली जो हमारी ज़ियारत आ रही है, मस्जिद अरीश एक अरबी का लफ्ज है। अरीश का मैंने छप्पर, एक छत वाली जगह, जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दरमियान खैमा था, जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में मदद की दुआ की थी। या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा। या अल्लाह ये 313 का लश्कर अगर ये आज खत्म हो गया, या अल्लाह ये मेरा कुल सरमाया, कुल सासा, मक्का और मदीना की मेहनत अगर ये आज खत्म हो गई, तो पूरी दुनिया में क़यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब तू गम न कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए मलाइका फरिश्ते भी जमीन पर उतारे थे। ये आप लोगों के सीधे हाथ पर लेडीज के वॉशरूम है, ये साथ में जमीन पर पत्थरों की एक डेरी लगी, थोड़े जा सकना, पत्थरों की एक डेरी लगी हुई है। इस जगह पर एक पीने वाला पानी का कुआं था। उस पीने वाले पानी के कुएं पर भी मुशरिकीन मक्का, काफिर मक्का ने कब्जा कर लिया था। और ये जो नीचे खजूरों के बाग लगे इस तरह की, वो नीचे पक्की जमीन थी, उन्होंने नीचे पक्की जगह का इंतखाब कर लिया था। पक्की जगह पर अपने खेमे लगा लिए थे। अल्लाह ताला के हुक्म से जब तेज अंधेरी, आंधी, तूफान, बारिश नजर हुई, ये जगह कच्ची हो गई। मुशरिकीन मक्का, काफिर मक्का के खेमे उलट पुलट गए, आपस में टकरा कर मरना जगाना शुरू हो गए। 70 कुफारों को कत्ल करके जहन्नमवासी किया गया। और वो सामने जो कच्ची रेत के कच्चे टीनों के ऊपर मुसलमानों के खेमे थे। अल्लाह ताला के हुक्म से जब बारिश हुई, जब रेत के ऊपर पानी डाल दो तो रेत पक्की हो जाती है। मुसलमानों की जगह पर पाँव जमने शुरू हो गए। मुसलमानों ने मट्टी को, रेत को शहरों से इकट्ठा किया, पीने के और वो पास सामने दसने को इधर साथ ही बदर सी और असर का नमाज पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह नफल अदा करी क्या हो रहे हैं ऐसा जुड़ने हैं बस वाली साइड और नाल ही फिर असा उस साइड जो पर मौका लगा तो इंशाल्लाह वीडियो बना सा दसा तो कुछ ही रेत है। बाकी ये सारी जगह चेक करने पे तकने पे ये सारी भी चचनी पी है। और जेडे खजूर ने जिथे लगे न हेमे उत्थे जरा मुशरकीन जरा ना लाए सन हेमे। ये सारी रेत है। बाकी सारा व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया तो उम्मीद करने का जना से सारा व्लॉग पसंद आया तो इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में मिलने अल्लाह सुनने वाले।